All right, guys, just a quick check-in. Can I get a thumbs up from everyone who is here right now with me? Okay. I see a lot of names. Good job, guys. I'm glad you guys are all on time. So this is just a continuation of the previous session, but before मैं Fahad और Yazid को hand over करूँ, it is quiz time. So I am just sharing the link of a quiz for the previous session, and you guys have 5 minutes to do that quiz. मैंने chat में link भी भेज दिया है. You guys can scan the QR as well. I will close it at sharp 9:40. Okay. So let's do the quiz before I hand it over to start setting up your algo kit today. We had 20 responses last time. Let's hope we get even more this time. Whether you were in the session, whether you saw the recordings, I think you guys should be, pretty able to do the quiz. बहुत आसान सा, बहुत छोटा सा MCQ quiz है. So good luck, guys, and just जिसका हो जाए, start giving a thumbs up. I am just re-sharing the link for people who just came. If anyone doesn't have the link for the quiz, let me know. I will resend it. Come on, guys. It's a super easy quiz. Okay, we have Saad completing the quiz. Good job, Saad. Who else? Come on, guys. It's a super easy quiz. Asman is done. Rauf is done. Good job, guys. Three more minutes, guys. 3 more minutes. Moit is done. Hassan's done. Manur is done. Mariam's done. Ali Hamza's done. Hassan is done. Who else is left? We have 2 more minutes, guys. Time is ticking. Mehdi is done. Kapsha is done. Arib is done. Guys, if I'm pronouncing your names wrong, please correct me. All right. Guys, I think ये पिछले वाले से ज़्यादा easy था. Yes or no? All right. We have 1 minute and 15 seconds left. I am very punctual on my timings, guys. Right. We have 16 responses till now. Come on, guys. We can do it. Last minute left. Guys, last 30 seconds. And then I'll have to close the quiz.
5, 4, 3, 2, and 1. I have closed the quiz. Acha. Ahmed, okay, Ahmed, I'll open it for you for like 2 minutes. For 1 minute, actually. I've opened the quiz, guys. 1 last minute. I'm closing it. Uske baad. Okay, 3, 2, 1, and that's it. Thank you so much, guys. I will now hand it over to Yazib. He will be continuing with telling you guys about how you can set up your algo environment and everything else. Over to you, Yazib. थैंक यू जगरिया. सो वेल गाइस, आज हमें जो स्टार्ट करना है, आज हमें एल्गोकिट स्टार्ट करनी है. एल्गोकिट बेसिकली क्या होती है, कैसे चलती है और क्यों हम उसको इस्तेमाल करते हैं. सो वी आर स्टार्टिंग. So first of all, I hope you all have Docker, you all have Python, you all have WSL. किसने इंस्टॉलेशन कर लिया है, जरा सा मुझे थम अप करके दिखा दे सब चीज़ों की. WSL किसने इंस्टॉल कर चुके हैं, कौन कौन डॉकर इंस्टॉल कर चुका है, कौन कौन गिट को इंस्टॉल कर चुका है. तो ग्रेट यार, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कर लिया. वैसे मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी. सो इसके लिए हम एक काम करेंगे, अगर जिसका इंस्टॉल नहीं हुआ है और जो थोड़ी सी आपको एरर्स वगैरह फेस करने पड़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास रख लेंगे जिसके लिए जहाँ पर आप लोग अपना चीज़ें स्क्रीन शेयर करके हमें बता देंगे ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो फिर हम लोग उसको इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प कर देंगे. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन, today's session. So just first of all, what we will do, we just तो हम सबसे पहले अपना टर्मिनल ओपन, CMD को ओपन कर लेंगे ताकि हम सबसे पहले एल्गोकिट को इंस्टॉल कर सकें. अब एल्गोकिट बेसिकली मैं पहले आपको बता दूं एल्गोकिट होती क्या है. लास्ट क्लास के अंदर फहद ने आपको एक्सप्लेन किया था अच्छे से कि एल्गोकिट बेसिकली एक तरीके से फ्रेमवर्क है जो आपको एक वे प्रोवाइड करता है. आप पाइथन पे लिखे हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर टाइपस्क्रिप्ट पे लिखे हुए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकें ऑन एल्गोरिथम चेन. तो बेसिकली दिस जस्ट अ फ्रेमवर्क ताकि आप एक तरीके से ब्लॉकचेन को एक रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट कर सकें. एल्गोकिट इसलिए भी यूज होती है. हम आगे इसको करते हैं. चलें, लेट स्टार्ट. सो हम जस्ट सिंपली हमने क्या करेंगे, आप सब लोग इसको अपने पास डॉक्यूमेंटेशन को खोलने मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं चैट के ऊपर. तो आज हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, तो आप लोग जल्द से जल्द सब लोग अपने पास इस लिंक को ओपन कर लें ताकि एल्गोकिट को हम स्टार्ट करते हैं. अच्छा, तो बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया, हमने अपना सिंपल सा CMD ओपन कर लिया. CMD के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल सा WSL लिखेंगे ताकि हमें WSL का विंडोज सबसिस्टम फोल्डर का इन्वायरमेंट मिल जाए. अब हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास विंडोज सबसिस्टम का इन्वायरमेंट आ चुका है. देन व्हाट वी विल डू नाउ, वी विल इंस्टॉल एल्गोकिट. तो मेरे पास तो एल्गोकिट इंस्टॉल हुई हुई है, तो जिसके पास नहीं हुई होगी तो उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है. सो मुझे ये बता रहा है यू हैव ऑलरेडी एल्गोकिट. सो जो जल्द से जल्द जो इंस्टॉल कर ले, थोड़ा सा थम्स अप करके मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग इंस्टॉलेशन कर लें जल्दी जल्दी. या फिर गो थ्रू कर लेंगे डॉक के ऊपर ना, उसमें स्क्रीनशॉट्स हैं तो लोगों को हेल्प हो जाएगी. ओके जो साथ साथ कर रहा है. ओके ओके. अच्छा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किस किस का इंस्टॉलेशन हो चुकी है. ओके, तो ऊपर से ना विंडोज भी सिलेक्ट करते हैं क्योंकि आई थिंक मोस्टली हमारे पास जो लोग हैं उनके ऊपर विंडोज होगी. अभी लिनक्स हाँ, विंडोज के लिए हम विंडोज कर लेते हैं. अच्छा, विंडोज के लिए आप लोग एक WSL को इंस्टॉल लाजमी करें ताकि, क्योंकि जब हम डॉकर पे जाएंगे तो WSL लाजमी उसके लिए हमें चाहिए होगी. So now
हम क्या करते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो हमें खुद एल्गोरिथम दिया हुआ है वो एल्गो किट को चेक करना है कि हमारे पास एल्गो इंस्टॉल हुई या नहीं हुई। सो नाउ हमारे पास एल्गो इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें सिंपल सा क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो काम करना है ना, हमें डॉकर को ओपन करना है। सब लोग आप अपने डॉकर को ओपन करें जाकर। देन उसके बाद के जो हम उसके बाद हम एल्गोरेंट की लोकल नोड को स्टार्ट करेंगे। एल्गोरेंट की नोड क्या करती है, एल्गोरेंट की नोड जो है बेसिकली एक तरीके से आप एक नोड को रन करते हो अपने सिस्टम के ऊपर। देन इट विल प्रोवाइड यू सम फेक अकाउंट्स, जिन अकाउंट्स के थ्रू आप डिप्लॉयमेंट्स करते हो, जिन अकाउंट्स को आप यूज करते हो डिप्लॉय टेस्ट नेट के ऊपर डिप्लॉयमेंट्स के लिए। तो देन वी विल स्टार्ट। आई थिंक मुझे जो है ना बेसिकली स्टार्ट कर देना चाहिए। हम सबसे पहले जो बनाएंगे, हम एक फोल्डर बना लेंगे एल्गोरिथम सेशंस का। देन हम इसके अंदर सेशन 4 है आज हमारा, आई थिंक। Yes. तो हम बेसिकली इसके बाद हम इस क्लास के अंदर इस फोल्डर के अंदर CMD ओपन करेंगे और यहाँ पे सिंपल हम कोड डॉट लिखेंगे। कोड डॉट बेसिकली क्या करता है, कोड डॉट आपका VS कोड को ओपन कर देता है इस फोल्डर के डायरेक्टरी पर। अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? वो भी अपना माइक ओपन करके बता सकता है, म्यूट अनम्यूट करके बता सकता है। Yes, Yadir. We're getting thumbs up and yeses in the chat. That's great. So now just open the terminal. Again WSL. आई थिंक आई होप सबने डॉकर भी अपने पास ओपन कर ली होगी। सो हम सिंपल सी एक कमांड लिखेंगे जो कि कमांड हमें कहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है, हमें यहाँ पर अवेलेबल है इनकी डॉक्स के अंदर। एल्गोकिट लोकल नेट स्टार्ट बेसिकली ये क्या करेगी कि आपकी लोकल नोड को स्टार्ट कर देगी यहाँ पे। सो हम सिंपली जो है आई थिंक it will take some time. So जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक बात बता चलो, आप डायरेक्ट टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ, डायरेक्ट एक्सटर्नल कमांड प्रॉम्प्ट। अदरवाइज आप जब VS कोड खोलते हैं तो VS कोड का अपना टर्मिनल होता है, हर एक एडिटर का अपना टर्मिनल होता है, तो आप वो भी आराम से यूज़ कर सकते हैं। इट डजेंट मैटर, ओके, सेम ही है दोनों चीज़ें। सो फेल टू स्टार्ट लोकल नेट। बेसिकली मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई थिंक रैम की आ रही है, तो उसको मैं दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ। हेल्दी आई होप इस बार स्टार्ट हो जाएगी लोकल नोट समटाइम। नाउ इट्स स्टार्ट हो चुकी है मेरी लोकल नोट। सो व्हाट वी विल डू हियर, फर्स्ट हमें बेसिकली जो लोकल नेट ने हमें वो दिए हैं, क्या बोलते हैं, अकाउंट दिए हैं, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि वो अकाउंट कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक एक मुझे फाइल बना लेनी चाहिए यहाँ पे txt की, और txt।
तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस कमांड को रन करेंगे। ये कमांड मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ चैट में, तो इस कमांड को आप अपने पास एक बार चला लें। ना अब यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर बेसिकली हम कंटेनर के अंदर आ चुके हैं एल्गोकिट के। अब ये जो कंटेनर है ना, बेसिकली कंटेनर के अंदर हम यहाँ पे एक कमांड चलाएंगे गोल की। अब बेसिकली गोल क्या है, एक लाइब्रेरी है जो कि अकाउंट्स वगैरह के लिए काम आती है। हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। जब हम कंटेनर रन करते हैं ना, तो बेसिकली ये लाइब्रेरीज और सब चीजें जो जो उसके अंदर लिखी हुई है एल्गोकिट के अंदर, वो सब इंस्टॉल हो जाती हैं कंटेनर के अंदर। तो हमें बेसिकली हम टूल को जो है अपने डायरेक्ट सिस्टम के ऊपर भी जिस तरह हमने एल्गोकिट को इंस्टॉल किया है इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन हमें जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि हमें ऑलरेडी नोड के थ्रू ये सब चीजें कंटेनर में प्रोवाइड हो रही हैं। तो हम बेसिकली सिंपल से हमने क्या किया, हमने ये कमांड चलाई। इस कमांड से क्या हुआ, इस कमांड से हम कंटेनर के अंदर चले गए। तो अब इसके बाद अब हमें चेक करना है कि हमारे पास जो अकाउंट्स हमें मिले हैं और उसमें कितने कितने एल्गोस मौजूद हैं। अच्छा, सबके पास ये कमांड रन हो चुकी है? प्लीज थम्स। बिफोर वी मूविंग लाइक हम एल्गोरिथम के डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, एल्गोकिट के अंदर इसको सेटअप कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि यार एल्गोकिट बेसिकली है क्या, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने वीडियोस नहीं देखी, सेटअप नहीं किया, सो ताकि अभी जो यहाँ पर अवेलेबल है सारे एक लाइन पे आ जाए। एल्गोकिट हमारे पास ना बहुत सारे अदर वेज हैं डेवलपमेंट करने के एल्गोरिथम के ऊपर, बट क्या है कि कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मैनुअल तरीके होते हैं हमारे पास। अब अगर हम मैनुअल तरीकों पे जाएंगे तो हमें टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डेवलपमेंट कर रहे हैं क्योंकि आजकल जो ज़माना चल रहा है ना, वो फास्ट शिपिंग का चल रहा है कि आप यार बिल्ड फास्ट शिप फास्ट। तो हम यहाँ पर हम वेट नहीं कर सकते, मैनुअली टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम एल्गोकिट जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। एल्गोरिथम ने किट बना दी है कि यार उसमें सब कुछ अवेलेबल है जो आपको चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए एल्गोरिथम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें हमें जितने भी डिपेंडेंसीज होती हैं, R4 के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एंड सारी चीज़ें होती हैं, वो सब आपको एल्गोकिट के अंदर मिल जाएगा। तो आपको बाहर से कोई चीज़ बार बार इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वन टाइम इंस्टॉल होता है इसके ऊपर, ठीक है। बाकी यासी प्लीज़ एक एक कमांड की तरह समझा दें ताकि आसानी हो जाए। दैट्स ग्रेट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इस कमांड को रन किया, गोल की कमांड को, इस गोल की कमांड ने क्या किया, तो इसने हमें ये क्या बताया कि एल्गोकिट के ऊपर जो हमें अकाउंट्स मिले हैं वो ये मिले हैं, अकाउंट्स का एड्रेस आ गया, और हमें जो मिले हैं इसके अंदर इतने एल्गोस मिले। कितने एल्गोस मिले? 9। हमें जस्ट एक अकाउंट में इतने एल्गोस मिले हैं। फिर दूसरे अकाउंट है, इसने कितने अकाउंट्स हमें प्रोवाइड किए हैं, 1 2 3 सो ऑन, आगे हमें प्रोवाइड किए हैं बहुत सारे अकाउंट्स के ऊपर ये 0 हैं। Okay, Yasir, I think let's go through the Algokit installation once more. We are going. Because a couple of people, the installation, because a couple of people have questions कि कैसे इंस्टॉल करना है और क्या क्या उसके कमांड्स हैं। एल्गोकिट के सिंपल कमांड है, आप सिंपल जाएंगे, आप या तो फिर डायरेक्टली, मैं बेसिकली WSL के थ्रू कर रहा हूँ, हमने आपके साथ वीडियो शेयर कर दी, जो विंडोज यूजर है। तो हम सिंपल सी एक कमांड यहाँ पे लिखेंगे, जो कमांड यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई है वो क्या है, pip-x install algokit। ये सिंपल सी एक कमांड है जिसको हम कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद सिंपल अपने टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पे आके क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। नाउ यू कैन सी मेरे पास ऑलरेडी एल्गोकिट इंस्टॉल है। तो ये कह रहा है कि आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल हुई भी है एल्गोकिट, लेकिन जैसे ही आप अपने पास इंस्टॉल करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम। आई थिंक सबने कर ली होगी। अजय भैया, अच्छा, एक और चीज़ थी कि अगर किसी के एरर्स आ रहे हैं, जैसे pip-x का मसला आ रहा है या पिप का मसला आ रहा है या पाइथन का मसला आ रहा है, तो बेसिकली ये एरर्स से घबराने वाली बात नहीं है। ये एरर्स इसलिए भी आ सकते हैं क्योंकि आपने सेटअप नहीं किया है। अगर हमारे पास pip-x नहीं है या एनी अदर डिपेंडेंसीज अवेलेबल नहीं है ऑन द कंप्यूटर, सो आपके पास इस तरीके के मसले आएंगे। तो घबराना नहीं है, जो वीडियोस हमने दी थी उसको इस क्लास के पास देख लेना, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिर से, क्योंकि मैं आप लोग को ना गिटहब का रेपो भी प्रोवाइड करूंगा इस सेशन के बाद, नहीं नेक्स्ट सेशन के अंदर,
तो वहां पर आप लोग को सारा रिकॉल एक एक चीज कहीं पर भी मिस हो गए, कहीं पर भी अटकोगे, वो देखोगे एंड वहां से कंटिन्यू कर लोगे। तो घबराना नहीं है, अभी फॉलो करें। थैंक यू। अच्छा, बेसिकली अगर किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है WSL की या फिर डॉक्टर वगैरह की, तो हम इसके लिए जवेरिया से कहकर एक एक्स्ट्रा सेशन करवा देंगे, ताकि जिसके साथ जो जो प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को आप हमें दिखा दीजिएगा, तो हम उसको सॉल्व करवा देंगे। आई थिंक हमें आगे चलना चाहिए। तो हम लोग कहाँ पर थे? हम लोग अकाउंट्स पे थे, जो कि हमें अकाउंट्स मिले हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझने की जरूरत है, जो कि आगे सबसे ज्यादा काम आएगी। ये है माइक्रो एल्गोस। ये है माइक्रो एल्गोस। एक एल्गोरेंट, वन एल्गो बराबर होता है, आई थिंक 6 डेसिमल्स के होता है। तो बेसिकली वन एल्गो बराबर होता है 6 डेसिमल्स के, यानी कि 1 के साथ जो 6 जीरो लगे होंगे ये उनके बराबर होता है। क्योंकि ये जो डेसिमल्स है ना, ये आगे जाके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं आपके, क्योंकि हैकिंग अटैक्स के अंदर और चीजों के अंदर बेसिकली अगर आप किसी को एल्गो सेंड कर रहे हैं, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपको, क्योंकि यूआई एंटी का जो इंटीजर होता है ना, बेसिकली वो आपको फ्लोटिंग में वैल्यू नहीं देता, कभी भी वो आपको इस तरह वैल्यू लाकर नहीं देगा 0.1। वो पता है क्या करेगा? वो इसको बैक बैक पे ले जाएगा, यानी कि अगर आपके पास 1.1 उसके अंदर आप लिखेंगे तो वो उसको 1 कंसिडर करेगा। तो बेसिकली इस वजह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है डेसिमल्स का। ये कॉन्सेप्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है इसमें, और ना ही इसके अंदर आपको पढ़ने की जरूरत है। हम इसको आगे बहुत जल्दी पढ़ेंगे। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू, आई थिंक मुझे एक और टर्मिनल ओपन करना चाहिए अपने लिए, ताकि जहां पर हम एल्गो किट को प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकें। हमारी एल्गो किट लोकल नेट स्टार्ट हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम जो हमारा असल काम है हम उस तरफ जा रहे हैं। तो हम एल्गो किट इनिट, अब एल्गो किट इनिट की कमांड क्या करती है? एल्गो किट इनिट की कमांड आपका प्रोजेक्ट सेटअप करती है, पूरा उसकी सारी फाइल्स बनाती है, आपको पूरा एक सेटअप प्रोवाइड करती है, जहां पर आप एवीएम के ऊपर अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं, और पूरा आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे आप बैकएंड और फ्रंट एंड से कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्गो इसकी हम कमांड को यहाँ पे रन करेंगे। नाउ अब ये हमसे पूछ रहा है कि आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाना है, सिर्फ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स वाले उस पे जाना है, या फिर डीएफ फ्रंट एंड पे जाना है, या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डीएफ फ्रंट एंड पे जाना है। क्योंकि हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड डीएफ फ्रंट एंड हमने आई थिंक वेब3 मास्टर क्लासेस के अंदर देखा था, जो सारा जीन ने करवाया था। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। सो हम सिंपल सी यहाँ पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पर ही जाएंगे। सो नाउ ये पूछ रहा है कि अब आपको पाइथन के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने हैं या फिर टाइप स्क्रिप्ट में लिखना है, तो हम सिंपल सा पाइथन पे जाएंगे। अब यहाँ पर ये बेसिकली डायरेक्टरी का नाम पूछ रहा है कि हमें डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है, तो हम इस वक्त हेलो वर्ल्ड कर रहे हैं, तो हम हेलो वर्ल्ड ही करेंगे। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो थोड़ा सा टाइम लेने देते हैं। आप लोग सब जो जो लोग साथ साथ कर रहे हैं वो सरस से अपने हम इसको, अच्छा यहाँ पर ये पूछ रहा है अब कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है, जो जहां पर आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, आपको उस डायरेक्टरी का नाम क्या रखना है। तो बेसिकली ये सजेस्ट कर रहा है हेलो वर्ल्ड रख दो, लेकिन हम यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ही रख देंगे। नाउ अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको स्टार्टर पे जाना है, आपको प्रोडक्शन पे जाना है, आपको कस्टम पे जाना है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज होता है वो प्रोडक्शन यूज होता है, तो हम बेसिकली प्रोडक्शन पर ही जाएंगे। अगेन पाइथन। अच्छा, जो लोग साथ साथ कर रहे हैं वो थोड़ा सा थम्स अप कर दें। गुड 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 एवरीवन जो साथ कह रहा है, वेल एंड गुड। जिसने नहीं किया ना डिपेंडेंसी, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तो बाद में कर लेना। उसके सेशन अलावा की ना हम रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। पोइट्री, यस, हम यहाँ पर पोइट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे। हम्म। वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन स्टूडेंट को कि नहीं, पोइट्री हम यू क्यों कैन इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लीज। या
तो हमने उस दिन आपको आई थिंक सेकंड थर्ड सेशन में बताया था, लास्ट सेशन में हमारे, कि हम पोएट्री भी यूज़ कर सकते हैं, हम नॉर्मल वर्चुअल एनवायरनमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जब हम मैनुअल डेवलपमेंट या पाइथन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ये एल्गोकिट के अंदर होते हैं, तो एल्गोकिट प्रोडक्शन लेवल के ऊपर हमें फोर्सफुली वो पोएट्री का ही यूज़ कराता है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन के ऊपर हम नॉर्मल इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते कि हमें बाद में एरर्स आ रहे हो, मसले आ रहे हो, या हम इस तरह की स्लोनेस फील कर रहे हो, स्केलेबिलिटी के मसले आ रहे हो। तो पोएट्री एक स्केलेबल थिंग है, इसलिए सारा कुछ कंट्रोल हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर वो पोएट्री यूज़ कर रहा है। पोएट्री का थोड़ा सेटअप होता है, उसकी भी आई गेस वीडियोस प्रोवाइड की हुई है, तो वो देख लीजिएगा आप लोग। जी जी। यस, थैंक यू फहद फॉर एक्सप्लेनिंग। सो इस वक्त ये प्रोजेक्ट सेटअप हो रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वक्त फाइल्स आना शुरू हो चुकी हैं। रीड में फाइल, की सारी फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। देन अभी बस ये एक बार पूरा सेटअप हो जाए, देन वी विल स्टार्ट। मैंने अपनी इंटायर स्क्रीन शेयर करी है, मेरे व्हाट्सएप के मैसेजेस आपके पास शो नहीं हो रहे? हेलो सर, यस। ये पाई चांद पे कर सकते हैं? नहीं, पाई चांद पे नहीं कर सकते। पाई चांद सिर्फ और सिर्फ पाइथन के एनवायरनमेंट के लिए होता है, जो कि जहाँ पर आप डीजेंगो के ऊपर या फिर आप क्या बोलते हैं फास्ट एपीआई पर यहाँ पे आप वहाँ पे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन एल्गोकिट के लिए आप वो यूज नहीं कर सकते। It is taking some time. Asha, while this is happening, just an advice for all of you guys. Guys, please register from the initial emails that you guys registered. So whenever you're joining the call, please अच्छा, join जब from the emails you guys registered from, so that the automated attendance update cannot be misinterpreted. So just make sure that you join from your own registered emails from next time onwards. Oh, you can continue, Yazir. थैंक यू। अच्छा, जब तक ये कंप्लीट हो रहा है तब तक आप लोगों के पास जो क्वेश्चंस होंगे आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे या फिर बात से, जवेरिया से। अनम्यूट भी कर सकते हैं, क्वेश्चन है हैंड रेज करें फर्स्ट, देन उसके बाद हम आपको बोलेंगे अनम्यूट का, तो आप करिएगा। यस प्लीज, अब्दुल अजीज। यस सर, ये जो हम वीएस कोड पे कर रहे हैं, ये हम कर्सर यूज कर सकते हैं वीएस कोड की बजाय? हाँ जी बिल्कुल, कर्सर यूज कर सकते हैं आप, क्योंकि कर्सर ओ, एक तरीके का रैपर है वीएस कोड के ऊपर, तो हमारे मसले नहीं आते। ओके सर, शुक्रिया। या थैंक यू। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यस। ये जो WSL में जब चला रहे हैं, इसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये कमांड नहीं चल रही, कहते हैं नॉट फाउंड। लेकिन बगैर WSL के चला रहे हैं तो इंस्टॉलिंग एल्गो किट होता है, लेकिन वो बहुत टाइम ले रहा है। वो फिर इंस्टॉलिंग एल्गो किट हो रहा है, बेसिकली हुआ ये है कि आपने जो एल्गो किट इंस्टॉल करी है ना, वो करी है अपने विंडोज के टर्मिनल पर, और आप जो एल्गो किट प्रोजेक्ट इनिशियलाइज कर रहे हो आप वो कर रहे हो WSL पर, तो वो ऐसे होगा नहीं। आपको एल्गो किट भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी WSL पर ही। लेकिन उस पर वो फर्स्ट वाली कमांड ही नहीं चलती। कौन सी फर्स्ट वाली? सबसे फर्स्ट वाली, जिसमें हम पिप इंस्टॉल यूजर पिप एक्स है। पिप एक्स इंस्टॉल आपको पाइथन इंस्टॉल नहीं होगा WSL पे। WSL पे किस तरह इंस्टॉल करेंगे? पाइथन हमने वीडियोस प्रोवाइड करी हुई हैं आपको, आप वो उस तो पे डायरेक्ट जाएंगे। आप इंस्टॉल नहीं हो रही। नहीं, उस पे बेसिकली WSL के लिए अलग से करनी पड़ती है। चले मैं उसको देख। यस अब्दुल बाकी बस प्लीज बताइए। सर मैं पाई चांद पे कर रहा हूँ और मैंने तो इंस्टॉल एल्गो किट लिखे हैं, हो रहा है, लेकिन पाई चांद पे मैं कर सकता हूँ?
अभी आई थिंक यासीर ने बताया था कि पाइचाम के ऊपर कुछ मसले हैं जो कि वो पाइथन डेवलपमेंट के लिए तो अच्छे हैं, वहाँ उसके जो नेटिव बिल्डिंग चीज़ें हैं वो तो वहाँ चल जाएंगी, लेकिन जब व्हेन यूर लाइक एल्गो एंड एल्गो किट के ऊपर आओगे ना, तो जब वो चीज़ें नहीं चलेंगी जी वहाँ आपको मसला आएगा। ठीक है, तो बेटर है कि VS कोड तो यूज़ कर दो, तो वो ज़्यादा बेटर है, जी 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 क्योंकि डाउनलोड है पाइथन थोड़ा VS हैवी कोड। भी है, तो आपके डॉकर के साथ वो मसला भी करेगा। सो Yes. जस्ट एन सजेशन। जी जी जी। Any other question? फहद, जब तक आप आर्क4 स्टार्ट कर दें तब तक ये हो रहा है, आप आर्क4 बता दें बेसिकली क्या होता है। R4 के लिए बिल्कुल हमें इसका इशू नहीं है, क्योंकि अभी सारे इंस्टॉलेशन कर लें ज़्यादा बेटर, क्योंकि या ऐसे जो है कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। बेसिकली मैं ऊपर से बता देता हूँ, R4 हम जो है एक या तरीके की लैंग्वेज की तरह आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि R4 एक लैंग्वेज है जो कि हम आगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स या चीज़ें लिखने में इस्तेमाल करेंगे। वो क्या है, उसमें पाइथन से कितना डिफरेंस है, उसमें क्या डेटा टाइप्स हैं, क्या चीज़ें, वो बिल्कुल वो डिटेल में आपको पूरी स्लाइड हमने बनाई हुई है, तो उसके साथ वो डिस्क्राइब कर दी जाएगी प्रॉपरली। Any other question? All right, while this is going on, I have a question for everyone. अभी तक सबको समझ आ रहा है क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? Is that clear for you guys? Have you guys started brainstorming what sort of projects you guys can build throughout this entire fellowship? Because you know our entire goal is to really act as an incubator कि हम आप लोगों को हेल्प करें ये प्रोजेक्ट बनाने में, और फिर उसके बाद आगे जाके मे बी अगर आप लोगों को कॉर्पोरेट से कॉन्टैक्ट्स चाहिए या कहीं और कॉन्टैक्ट चाहिए तो हम उसमें भी आप लोग की फैसिलिटेशन करें. So I would really want you guys to, you know, start thinking up of ideas जो आप इसमें बना सकते हैं. Start finding out क्या problems हैं जो blockchain के through solve हो सकती हैं. You know, काफी global ideas हैं जो हम पाकिस्तान में adopt कर सकते हैं. So I think let's you know start thinking of ideas as well. And जहाँ तक confusion हो रही है, ये videos आप लोग के पास होंगी sessions की. आपको कोई confusion है, you guys have the group, just write a message on the group. फहद को tag करें, मुझे tag करें, याजिद को tag करें, and we will try our best कि हम लोग आपकी सारी queries, सारे confusion, सारे concepts clear करवा दें. Videos देखिए, practice करें, and hopefully you know आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें clear होती जाएंगी. अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं. बेसिकली हमारे पास प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, तो हमारे पास जो फाइल्स हैं वो भी आ चुकी हैं. एल्गोकिट, गिटहब, VS कोड, प्रोजेक्ट्स, ये सारी फाइल्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं. तो हमारे लिए जो सबसे मेन फोल्डर है, उसकी मेन डायरेक्टरी है हमारे लिए, वो है प्रोजेक्ट्स. इन सब के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. प्रोजेक्ट्स के अंदर हमने क्या बनाया था, हमने एक हेलो वर्ल्ड हमारे पास था. देन उसके अंदर भी बहुत सारे फोल्डर्स मौजूद हैं, जिसमें एल्गोकिट है, आइडियाज है, टूवर्ड्स हैं, वी फाइल है, VS कोड की है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की है. राइट नाउ हमारे लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट फाइल है वो हमारे लिए क्या है, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की फाइल है. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से हमने फाइल को ओपन किया, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को हमने देखा, हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स फोल्डर का नाम लिखा था हमने वो देखा. नाउ भी हमने फिर contract.py को ओपन किया, और यहाँ पर सब लोग आई थिंक इसको ओपन कर लें अपने पास. हम हेलो वर्ल्ड करने के लिए अब जा रहे हैं. फाइनली यू आर गोइंग टू डिप्लॉय योर फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. सो आई थिंक सबने हो चुका होगा सबका. जिसका हो चुका है प्रोजेक्ट सेटअप वो थम्स अप कर दे. एंड जिसका नहीं भी हुआ है, वो स्टक है समवेयर, उसके एरर्स हैं, तो कोई बात नहीं, रुक जाओ वहीं पर, समझ लो, वीडियो देख लो, आज का सेशन लाइव देख लो कैसे हो रही हैं चीज़ें, क्योंकि वीडियो मिल जाएगी. तो जो वीडियोस मिली भी हैं वो देखना, सेटअप करना. देन हमारी जो लाइव सेशन भी आपको बाद में मिल जाएगा, तो इसको वापस से देखना, सेटअप कर लेना. ठीक है, इट्स अ कंप्लीट, यू नो, थोड़ा सा आपको टाइम लगाना पड़ेगा कुछ सीखने के लिए. ये है.
अच्छा जी, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। हमारे पास पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या लिखा हुआ है, जो कि हमारा है कॉन्ट्रैक्ट। इसने नाम भी इसका क्या रखा है, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसकी फाइल का नाम कॉन्ट्रैक्ट था, इसने इस वजह से नाम कॉन्ट्रैक्ट ही रख दिया है इसका नाम। तो बेसिकली यहाँ पर हमें दो फाइल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के फोल्डर में प्रोवाइड की गई है। एक तो contract.py जिसमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, दूसरी जो हमें फाइल प्रोवाइड की गई है इसके अंदर वो की गई है deploy-config.py। अब deploy-config.py क्या करती है, ये क्या करती है, ये डिप्लॉयमेंट के लिए काम आती है कि जब हम एवीएम के ऊपर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, ये दो फाइल इसलिए काम करती हैं। तो अब हम पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझ लेते हैं, इसके लिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है और ये कर क्या रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्या किया है, यहाँ पर सबसे पहले AlgoPy जो कि एक तरीके से लाइब्रेरी, एक तरीके से क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी है जिसके थ्रू जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं ARC4 के कॉन्ट्रैक्ट को, जो कि इंश्योर करता है कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो जो हमारे पास डाटा टाइप्स आ रही हैं, जो जो चीजें आ रही हैं, क्या ये एवीएम के लिए एवीएम के ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए सही है या गलत। यानी कि अगर कोई यहाँ पर हम कुछ भी गलत लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल पाइथन यहाँ पे कोड लिख दिया, तो ये ARC4 जब हम डिप्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो ये ARC4 क्या करेगा, उधर एरर थ्रो कर देगा। ARC4 बेसिकली इंश्योर करेगा कि जो जो चीजें हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिख रहे हैं क्या ये एवीएम कंपैटिबल है या नहीं। तो बेसिकली ARC4 का हम कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहे हैं, ये ARC4 बेसिकली क्या है, क्लास है। ये क्या है, बेसिकली एक क्लास है और इसी के अंदर से और इसी AlgoPy में से हमारे पास एक और चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो है स्ट्रिंग। क्यों स्ट्रिंग क्यों इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल पाइथन के स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता। जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, हमने बात करी थी कि ARC4 क्या करता है, बेसिकली ये स्ट्रिंग दे रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल पाइथन के जो स्ट्रिंग होता है सिंपल, जिसमें हम फॉर एग्जाम्पल अपना नाम लिख सकता हूँ, ये इस स्ट्रिंग को सपोर्ट नहीं करता। तो बेसिकली अब हम आगे बढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। तो थोड़ा सिंपल यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा जूम इन कर लें, लोगों को दिख जाए। थैंक यू फहद। तो बेसिकली हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने सिंपल सा यहाँ पे लिखा है क्लास, जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट के लिए लिख रहे हैं। दूसरा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का नाम आ गया, हमने कॉन्ट्रैक्ट का नाम क्या रखा है, कॉन्ट्रैक्ट्स। तीसरी हमारे पास चीज आ गई ARC4 का कॉन्ट्रैक्ट, जो कि हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं। अब ये जो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है ना, बेसिकली ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट। हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए अभी आप सिर्फ इतना समझ लें कि ये इनहेरिट हो रहा है, एक क्लास इनहेरिट हो रही है दूसरी क्लास के अंदर। अब ये जो ARC4 की क्लास इनहेरिट हो रही है, यही इंश्योर करेगी सब चीजों को। अब ये क्या हो रहा है, ये बेसिकली डेकोरेटर है। डेकोरेटर भी एक तरीके से पाइथन का एक कॉन्सेप्ट होता है, डेकोरेटर्स। तो हम यहाँ पे एक डेकोरेटर को यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ताकि ये भी, ये डेकोरेटर्स क्या करते हैं, ये भी इंश्योर करते हैं कि हमें आगे करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करें कि कूप प्रोग्रामिंग के अंदर, तो यहाँ पर पब्लिक मेथड्स होते हैं, प्राइवेट मेथड्स होते हैं, इंटरनल मेथड्स होते हैं। तो इसके अंदर जिस तरीके के जो मेथड्स होते हैं, बेसिकली इस तरीके से हमें बताने पड़ते हैं, क्योंकि एवीएम उनको उन मेथड्स को सपोर्ट नहीं करता। तो हम बेसिकली यहाँ पर जब एबीआई मेथड हम लिखते हैं, तो बेसिकली ये क्या करता है, ये इसको एक्सटर्नल बना देता है। जिस मेथड के ऊपर ये लिखा हुआ होगा, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सटर्नल कॉलेबल बना देगा। यानी कि बाहर एक अकाउंट है जो कि इस कॉन्ट्रैक्ट के मेथड को कॉल कर सकता है। तो बेसिकली अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम सिंपल सा कर रहे हैं, हमने एक मेथड का हमने डिफ लिखा, जो कि पाइथन के अंदर मेथड लिखने के लिए लिखते हैं। दूसरी चीज हमने इसका नेम रखा हेलो। तीसरी चीज हमने सेल्फ रखी, जो कि पाइथन के अंदर एक तरह दिस की जैसे दिस काम करता है, इस तरह इसके अंदर ये काम करता है, सेल्फ रखा। देन इसके अंदर हमने एक आर्ग्यूमेंट रखा नेम, आर्ग्यूमेंट की हमने टाइप रखी क्या, स्ट्रिंग। हमने आर्ग्यूमेंट की टाइप रखी स्ट्रिंग। अच्छा, टाइप्स को हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जाके। और हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर सिंपल देखा कि ये स्ट्रिंग क्या रिटर्न कर रहा है, ये बेसिकली ये मेथड क्या रिटर्न करेगा, हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर भी तो सर ये कॉमास यूज हो रहे हैं, तो बेसिकली ये तो आप कह रहे थे कि स्ट्रिंग यूज करता है, तो यहाँ पर तो कॉमास यूज हो रहे हैं, तो इसको मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या कर रहा है, यहाँ पर एक हेलो यहाँ पर आ रहा है। देन उसके बाद इस नेम को जो भी यूजर इनपुट देगा, जो भी यूजर इनपुट देगा, वो इस नेम को यहाँ से कॉन्कैटिनेट कर देगा इस हेलो के साथ। फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम दिया, मैंने अपना नाम दिया, तो ये रिटर्न में क्या कर देगा, हेलो याजिब। तो ये है बेसिकली हेलो वर्ल्ड का सिंपल कॉन्ट्रैक्ट। और अब हम जो आगे जाएंगे वो डिप्लॉय.config की फाइल पे जाएंगे,
ताकि हमें पता चले कि deploy.config की फाइल कर क्या रही है। deploy.config की फाइल क्या कर रही है, यहाँ पर हम सिंपल से, अच्छा इस फाइल के अंदर आपको ज्यादा जो है कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये बेसिकली सिंपल से एक फाइल है डिप्लॉयमेंट। अभी डिप्लॉयमेंट की फाइल क्या कर रही है, इसके अंदर मल्टीपल चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। एल्गोकिट यूटिल्स इंपोर्ट हो रहा है। एल्गोकिट यूटिल्स को आप आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि अकाउंट्स के लिए और बहुत सारी चीजों के लिए काम आता है। बहुत सारी फॉर एग्जाम्पल फ्रंट एंड से कनेक्टिविटी के लिए भी काम आती है सब चीजें। देन उसके बाद एक लॉगर है यहाँ पे। देन उसके बाद डिफ डिप्लॉय है। इसके लिए क्या कर रहा है, ये डिप्लॉय कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को। क्या कर रहा है, ये डिप्लॉय कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, जिसकी जो क्या बोलते हैं, जो और रिटर्न कर रहा है नन, कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। तो हमने सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखा, सिंपल सा हमने यहाँ पे कोड लिखा हुआ जो कि हमें दिया है एक हेलो आर्ग्स। हेलो आर्ग्स बेसिकली कहाँ से आएगा वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ, ये कहाँ से आ रहा है। एक कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री आ रही है हमारे पास, ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ये कहाँ से आ रही है। और सिंपल सा यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्कुरेंट को हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं लोकल नोड का। इधर से ही हम मेन नेट का इसको इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अभी इसके आर्ग्यूमेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं है, ये खाली है। तो इसका मतलब यह है कि यूज कर रहा है लोकल नोड। सॉरी मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे डिप्लॉय करवाना है इसको आज लाजमी। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है कि अभी ये लोकल नोड को यूज कर रहा है। ये डिप्लॉयर आ गया, यानी कि अकाउंट डिप्लॉयर मतलब कि वही ये भी डिप्लॉय करेगा। देन उसके बाद ये कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास आ गए एल्गोरेंट क्लाइंट के, बेसिकली क्लाइंट के अंदर ही सब चीजें हमारी इंस्टेंस वगैरह आते हैं सब चीजें। डिप्लॉयर का एड्रेस आएगा कि कौन डिप्लॉय कर रहा है। उसके अलावा ऐप क्लाइंट, इसके अलावा जो है बेसिकली ऐप क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, जो कि पूरा का पूरा एक तरीके से स्कीमा बनाएगा, सब चीजें बनाएगा और इसके इंस्टेंस को हमारे पास लेकर आएगा। ऐप क्लाइंट के थ्रू ही हम फंक्शंस की कॉलिंग करेंगे, मेथड्स की कॉलिंग करेंगे। देन उसके बाद ये इफ रिजल्ट आता है कि अगर रिजल्ट सही है तो ठीक है, अगर रिजल्ट गलत है तो वो क्या करे, फेल कर दे। देन एल्गोरेंट की सेंड पेमेंट आ गया, ये बेसिकली पेमेंट मेथड है पूरा का पूरा, जो कि क्या बोलते हैं, रिसीवर यानी कि ऐप एड्रेस को सेंड कर रहा है, जो कि एल्गोरेंट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो भी एड्रेस है ना, उसको ये अमाउंट सेंड करेगा वन एल्गो की। ये बेसिकली यहाँ पे ये काम कर रहा है। तो इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होना है, बाय द टाइम आप लोगों को इस चीज को समझ जाएंगे। अब सिंपल सा हम यहाँ पे क्या काम कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेलो वर्ल्ड के मेथड को कॉल करके जो भी हम यहाँ पे इनपुट प्रोवाइड करेंगे वो हमें लाके यहाँ पे रिटर्न करेगा, और यहाँ पे हमें क्या करेगा, हमें हमारे टर्मिनल के ऊपर इसको प्रिंट करके दिखा देगा। तो ये सिंपल सा यहाँ पे एक काम कर रहा है। तो हमें उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उससे पहले ये काम करना पड़ेगा कि हमें एक कमांड चलानी पड़ेगी, एल्गो गेट रन। हम एक काम करते हैं, हम इस कमांड को देख लेते हैं। सॉरी गाइस, तो ये सिंपल यहाँ पे कमांड हमारे पास मौजूद है, जो कि हम इस कमांड को कॉपी करेंगे। ये बेसिकली क्या करेगा, ये कुछ फाइल्स बनाएगा, जो कि मैं अभी आपको समझाता हूँ फाइल्स कौन कौन सी बनाएगा। हम यहाँ पे इस कमांड को रन करेंगे। नो सच अ फाइल बिल्ड, क्योंकि हम हेलो वर्ल्ड के फोल्डर में नहीं है तो इस वजह से कह रहा है नो सच अ फाइल बिल्ड। अच्छा जो जो साथ साथ चल रहा है, जरा सा वो अगेन अपने थम्स को आज मेरे पास मैं देख नहीं पा रहा, तो आप देख रहे होंगे तो आप बता दें। चल बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल, सबके नाम भी मैं नोट कर रहा हूँ जो हमारे साथ चल रहे हैं। इनकी प्रोग्रेस अच्छी होगी अच्छा, जरूर, उनके लिए मेरे पास जिनकी पर्सनली मेरे पास कुछ होगा, मैं कुछ प्रोवाइड कर सकता हूँ। अच्छी न्यूज़ है उनके लिए, नॉट फ्रॉम द एल्गोरिथम बट या। तो आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है इधर, आपकी कितने एक्टिव हो वो भी मैटर करती है इधर। उसके अलावा जो ये जैसे अजीब के मसला आया था कि यार वो प्रोजेक्ट में नहीं था,
फोल्डर में नहीं था तो एरर दे रहा था। तो इस तरीके के बहुत सारे एरर्स हैं जो ऑलरेडी काम करते रहे, उनको पता है इस तरह के मसले क्या होते हैं। जो नहीं कर रहे यार, ये जैसे जैसे हम डेवलपमेंट करेंगे ना, इस तरीके के एरर हमारे पास भी आएंगे। हम कोशिश करेंगे कि एरर्स आएँ ताकि हम उनको आपके सामने सॉल्व करें एंड आपको थोड़ी सी नो हाउ उसके साथ साथ होती है। कैसा, ठीक है, अच्छा है ना ये? आज बेसिकली मेरा यही इरादा था कि मैं आप लोगों को थोड़े से एरर्स निकाल कर दिखाऊं किस तरीके से एरर्स आते हैं। बट द प्रॉब्लम इज टाइम हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ 10 मिनट्स रह चुके हैं। मुझे एक शादी में जाना था, मैंने बोला था कि मैं लीव कर दूंगा 10:15 पे, बट कोई बात नहीं आप लोगों के लिए। तो यहाँ से भी एक सवाल है कि अभी डिप्लॉय हो रहा है ताकि दूसरों को पता लगे। नहीं, बेसिकली ये बिल्ड फाइल्स बना हाँ। रहा है आर्टिफैक्ट्स की। अब मैं बेसिकली जब जैसे ये बिल्ड होगा देन उसके बाद फिर मैं आपको आर्टिफैक्ट्स की फाइल बताऊंगा कि ये सब चीजें कहाँ से आ रही है, ये हेलो कहाँ से आ आर्टिफैक्ट रहा को है, थोड़ा ये सा सब चीजें एक्सप्लेन कहाँ कर दें से। ताकि जब तक ये हो रहा है। तो हाँ जी, बेसिकली आर्टिफैक्ट्स की फाइल बेसिकली क्या होती है कि आर्टिफैक्ट्स एक फोल्डर बनता है जिसके अंदर मल्टीपल फाइल्स बनती हैं जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का डाटा को कंटेन करती हैं। अब इसमें से कुछ डाटा एबीआई होता है, जो कि एबीआई बेसिकली इसलिए यूज होती है हमारे पास कि वो फ्रंट एंड और बैक एंड से कनेक्टिविटी के लिए यूज होती है। इसी तरह इसके अंदर कुछ फाइल्स बनती हैं डॉट टील की, जो कि डॉट टील क्या है, डॉट टील बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो पाइथन में या फिर टाइप स्क्रिप्ट के अंदर लिखा गया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको टील के अंदर वो टील में कंपाइल होता है। क्यों? क्योंकि वो टील में इस वजह से कंपाइल होता है क्योंकि एवीएम एल्गोरिथम वर्चुअल मशीन को पाइथन समझ नहीं आती, उसको पाइथन समझ नहीं आती। तो बेसिकली जो एल्गोरिथम की जो एवीएम मशीन है वो टील समझती है, तो इसलिए वो पहले टील के अंदर कन्वर्ट होता है, देन वो फाइल पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का डाटा को टील में कंटेन करती है। जब हम डिप्लॉय करते हैं तो बेसिकली जो एवीएम मशीन है वो उस टील की फाइल्स को पढ़ती है, वो उन टील की फाइल्स को रीड करती है, देन उसके बाद वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करती है। तो बेसिकली इसके अंदर ये सब चीजें होती हैं और R4 की फाइल्स भी होती हैं। जब ये बन जाती हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद। क्यों ना जब तक ये हो रहा है उसके साथ साथ आर्क की तरफ बढ़े। आर्क बता दूं आर्क क्या चीज़ें, ताकि पता बिल्कुल लग जाए। बिल्कुल बता दें आप। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। सो ओके, सो बेसिकली मैं आर्क के बारे में बताना चलूँगा कि जब आर्क ARC4 ARC, इसका अगर फुल मतलब की बात करें तो इसका है कि एल्गोरिथम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट। ओके, जैसे इंटरनेट के प्रोटोकॉल होते हैं लाइक स्टैंडर्ड्स के साथ, वैसे ही ना एल्गोरिथम के लिए भी ना कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि ARC4 एंड ARC34, ARC32, इस तरीके के अदर सिविलाइजेशन स्टैंडर्ड्स होते हैं। ARC4 लाइक उन्हीं में से ना सबसे एक इम्पॉर्टेंट समझ लो, एक सबसे बड़ा समझ लो स्टैंडर्ड है, जिसमें बेसिकली ना जितने भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के इंटरफेसेस होते हैं, या मतलब जब एल्गोरिथम में एल्गोरिथम पाइथन यूज़ करके कॉन्ट्रैक्ट लिखे हों, या ARC4, ताकि उसमें जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे होते हैं तो वहाँ ARC4 डिसाइड करता है उसमें क्यों सेट ऑफ बंच ऑफ चीज़ें होती हैं, उसमें स्टैंडर्ड्स होते हैं, टाइप्स हो सकती हैं, एनकोडिंग्स हो सकती हैं, एपीआई के मेथड्स हो सकते हैं, एंड मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो वो क्या करता है, वहाँ से चेक करता है एंड उसके बाद उन चीज़ों को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये चीज़ सही है, जो चीज़ यूज़ हो रही है कोड में जो बंदा लिख रहा है, क्या ये एक्सेप्टेबल है पीछे कि नहीं है, ये जो स्टैंडर्ड्स हमने एल्गोरिथम के जो मेन एवीएम ने सेट किए हैं वो एक्सेप्टेबल हैं पीछे, वो वही चीज़ें आ रही हैं हमारे पास। यार अगर नहीं आती तो एरर देता है, यार हम ये समझ नहीं पा रहे कि क्या चीज़ है जो हमने लिखा है ना, ये हमारे तो समझ से बाहर है भाई, कोई ऐसी चीज़ लिखो जो हमें समझ आए क्या करें। तो अगर कोई टाइप स्क्रिप्ट या जेएस से रेड यहाँ बैठा है ना जावा स्क्रिप्ट से, तो उसको ये चीज़ पता होगी कि जावा स्क्रिप्ट में हम इस तरीके के मसले हमारे पास कितने सारे थे कि मुश्किल लगती थी, हमें एरर्स का पता नहीं लगता था, 100 चीज़ें होती थी। तो उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट आया, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर टाइप्स आ गई थी, फिर उसमें रियल टाइम हमें एरर्स पता लगते थे, तो हमें चीज़ें वहाँ से आसानी होती रही और एक तरीके से क्लियर होती रही। और जो जितनी मुश्किल जेएस होती थी, एरर से भरी हुई, बग से भरी हुई, टाइप स्क्रिप्ट ने वो आसान कर दी। तो इसलिए टाइप स्क्रिप्ट भी आज आई थिंक 2024 का मोस्ट यूज लैंग्वेज में टाइप स्क्रिप्ट आया था। अभी तक के टॉप 500 जो कि एप्लीकेशंस हैं, जैसे ओपन एआई हो गई, मल्टीपल बड़े यूनिकॉर्न्स, उसके अंदर भी टाइप स्क्रिप्ट यूज़ होता है। टाइप स्क्रिप्ट भी हम यहाँ करवा सकते थे, लेकिन हमारा ये कहना है कि यार पैथन क्योंकि एक ऐसी लैंग्वेज है क्योंकि पाकिस्तान में पढ़ाई जाती है, मोस्टली आपकी सीएस के स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हुए हैं,
उनको इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया गया होगा पाइथन। अगर नहीं पढ़ाया गया उस यूनिवर्सिटी का ज़रा नाम बता दे भाई, क्यों नहीं पढ़ाया गया। अच्छा, पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा नहीं पढ़ाया गया, हम बता दें। ओके, आप फर्स्ट सेमेस्टर के होंगे इसलिए नहीं पढ़ाया गया होगा I think। हाँ। तो इसीलिए ना हम यहाँ पाइथन इस्तेमाल कर रहे हैं। बाकी फ्रंट एंड के लिए टाइप स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन है। फ्रंट के ऊपर टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करें तो आपके लिए लाइक जन्नत है, वो आसानी है, इजी टू अंडरस्टैंड। इवन के नॉन कोडर भी होगा ना, वो भी अंडरस्टैंड करेगा इजीली कि टाइप है, क्योंकि उसमें टाइप सेफ्टीज हैं, टाइप इतनी लाइक इजीली स्ट्रांगली यहाँ बताई हुई है। तो उसी तरीके से जो है ना एल्गोरिथम का जो आर्क है, वो उसमें भी कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, टाइप्स हैं, वो सेट की गई हैं पीछे। एंड उन्हीं के बेसिस के ऊपर जो है जैसे कि डेटा स्टैंडर्ड में सेफ्टी आ जाती है, क्लियरिटी आ जाती है, इंटरऑपरेबिलिटी आ जाती है कि डेटा की जो कॉलिंग हो रही है, क्या कहते हैं, आपस में बातें हो रही हैं, डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो सब जो भी हो रहा है उसको ना एक स्टैंडर्ड के तौर पे उसको बांध दिया जाता है आर्क 4 की मदद से। ठीक है, एक तरीके से आप इसको लैंग्वेज की तरह भी सोच सकते हो। ठीक है, हम पाइथन के अंदर आर्क 4 ज़रूरी नहीं है कि आर्क 4 ही यूज़ करें। हम अगर नॉर्मल एल्गोरिथम पाइथन यूज़ करेंगे तो वहाँ पर नॉन आर्क भी होता है और आर्क भी होता है। नॉन आर्क बिल्कुल उसमें आपको चीज़ें जो है खुद से मैनुअली बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड्स नहीं है उसके अंदर। ठीक है, तो बाद में आपके इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन अब मोस्टली जितना भी एल्गोरिथम का सिस्टम है वो आर्क के ऊपर जा रहा है। इसलिए हमने पाईटीएल भी यहाँ पर नहीं करवाई, क्योंकि पाईटीएल नॉन आर्क लैंग्वेज के लिए नॉन आर्क उसको समझा जाता है। तो लेकिन अब जो नए एवीएम्स के सिस्टम है वो आर्क को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आर्क्स हैं। आर्क के अंदर कुछ डेटा टाइप्स हैं। अब मैंने बताया था ना कि हमारी जो एल्गोरिथम पाइथन है वो उसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ चेंजेस हैं। ऑलरेडी जो पाइथन वाले हैं वो चीज़ें यहाँ पर नहीं मिलती, जिनको ऑलरेडी पाइथन पता है, सीखी हुई है, तो उनके लिए थोड़ी चेंजेस होंगी। जैसे कि यहाँ पर आर्क 4 के अंदर ना हमारे पास स्ट्रिंग नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यू इंटीजर 64 जैसे कि होता तो नॉर्मल इंटीजर है, लेकिन वो ना 0 से लेके बहुत लार्ज नंबर तक जाता है। सही है, नॉर्मल जो है 2046 तक जाता है, तो इसके अंदर जो है वो उससे ज़्यादा भी जा सकता है। और सही है, और इसमें ये है कि बेसिकली इसमें ना वो काउंटर के लिए यूज़ होता है, जो जैसे कि हम वॉलेट का बैलेंस काउंट हो गया, जैसे वोटिंग काउंटर्स हो गए, तो यहाँ पर हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। बाकी इसमें मैं नाम लेता चलूँ, आगे स्लाइड चेंज करेंगे फ्रेंडली, हाँ स्लाइड चेंज कर दें जी, वेरी थैंक यू। तो यहाँ ये ले, तो बिग इंटीजर यहाँ यूज़ होते हैं। बाकी अकाउंट्स, एड्रेसेस, बाइट्स, एसेट्स, एप्लीकेशंस, ट्रिपल्स, ट्रिपल्स जो है बिल्डिंग है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो बिल्डिंग भी हैं वो भी यूज़ हो रही होती हैं। बाकी स्ट्रक्ट इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बाकी डायनेमिक एरेज हैं वो थोड़े से यहाँ डिफरेंट यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक तरीके का यूएसबी समझ लें कि वो एलिगेंट के ऊपर एज यूएसबी काम कर रहा है, और जब वो लगा हुआ है तो वो स्टैंडर्ड्स हैं उसी के थ्रू आपने काम करना पड़ रहा होता है I डेवलपमेंट के think अंदर एलिगेंट की। I think Fahad, ठीक we है, just have 3 minutes, so हम I think एक बार डिप्लॉय करके दिखा दें, या then या उसके श्योर बाद श्योर ये श्योर नेक्स्ट श्योर क्लास श्योर, के अंदर हम नो प्रॉब्लम। इनसे तो फिर यही provide था We'll मोस्टली do हमारा as well. आर्क। या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? Yes, yes. ओके, जस्ट हमने क्योंकि हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो हमारे पास ये क्योंकि 3 मिनट्स में आपको जल्दी जल्दी फाइल समझा रहा हूँ। ये कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट डॉट पी की फाइल इसलिए यूज होती है क्योंकि डिप्लॉयमेंट की जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं पूरी की पूरी, यहाँ पर इसके लिए यूज की जाती है जो हेलो आर्क्स है। ये हेलो आर्क्स क्या कर रहा है, क्योंकि इसको आर्ग्यूमेंट इसके हमारे पास जा रहा है नेम के अंदर, तो बेसिकली ये हेलो आर्क्स यहाँ पर इसको आर्ग्यूमेंट देने के लिए यूज हो रहा है। नेम का एक आर्ग्यूमेंट जो कि हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हेलो के मेथड में दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसको नेम सेंड करेगा। नेम यहाँ से कहाँ से आ रहा है, वर्ल्ड से आ रहा है, हमारे पास वर्ल्ड भेज रहा है बेसिकली हेलो वर्ल्ड। तो रिस्पॉन्स यहाँ पर बन रहा है। ऐप क्लाइंट क्या कर रहा है, ऐप क्लाइंट पूरी की पूरी डिटेल अपने पास सब चीजों की पूरा का पूरा इंस्टेंस अपने पास लेकर आ रहा है इस चीज का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सारे मेथड सब चीजें अपने पास होल्ड कर रहा है। तो इसी तरह जो ये बेसिकली, और ये जो पूरा स्क्रिप्ट यूज करती है वो क्या यूज करती है, कॉन्ट्रैक्ट से क्लाइंट्स को। इसी तरह जब फ्रंट एंड बैक एंड पे जाते हैं तो वो जेसन यूज होता है हमारे पास। इसी तरह जो एवीएम के ऊपर डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होता है वो ये 3 फाइल्स यूज होती हैं डॉट टील की, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रूवल और कॉन्ट्रैक्ट्स डॉट क्लियर है। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की सारी जो है क्या बोलते हैं डिटेल को कंटेन करते हैं और एवीएम को बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये सब चीजें हो रही हैं। अगर हम इसके आगे जाते हैं तो इसके अलावा 2 फाइलें जो कि पूरा मैप पे मैप करती हैं। इसके अलावा अगर हम अब आगे बढ़ते हैं तो हम सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं इस कमांड से, एलोकेट प्रोजेक्ट डिप्लॉय।
speed for a while. ओके, इसने एरर मुझे थ्रू कर दिया कि आपकी लोकल नोड नहीं चल रही। तो ऐसा एरर्स में भी हो सकता है आपके पास दोबारा आए, तो मुझे लोकल नेट को स्टॉप करना पड़ेगा। अगेन बैट गेट वे बैट। हम सिंपल साइज कमांड को दोबारा से चलाएंगे। नाउ यू कैन सी कि हमारे पास जो एप्लीकेशन नंबर था हमारा, वो नंबर आ चुका है। ये हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का जो आईडी है, बेसिकली हमें वो आईडी मिल चुकी है 1200। नेम क्या है, वर्ल्ड हमें। और यहाँ पर जो हमने रिसीव हुआ है हेलो वर्ल्ड, यानी कि जो इस आर्गुमेंट के अंदर पहले हेलो था, हेलो के साथ जो भी हमने भेजा इसके अंदर, हमने स्ट्रिंग क्या भेजा था इसके अंदर, वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड हमें यहाँ पे रिसीव हो चुका है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पे क्या मिला है, 1200, जो कि आईडी है। अच्छा, बेसिकली मैं आपको एक चीज सिंपल सी और बता दूं कि बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने यहाँ पर मेथड को कॉल किया हेलो के। अब हेलो का मेथड तो हमने यहाँ पे लिखा था, हेलो का मेथड तो हमने यहाँ पे लिखा था, लेकिन जब प्रॉब्लम, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ऐप नेम, ऐप का जो नेम है और ये जो ऐप की जो आईडी है हमारे पास, ये कहाँ से आई? ये तो हमने लिखी नहीं थी, हमने ऐसा मेथड तो हमने कोई भी यहाँ पे नहीं लिखा था। तो बेसिकली ये मेथड जो हमारे पास आ रहा है, क्योंकि R4 के अंदर R4 कॉन्ट्रैक्ट से ये इनहेरिट हो रहा है ये मेथड्स, तो ये मेथड्स इनहेरिट होकर यहाँ पर हमारे पास शो हो रहे हैं। ये रिसीव करते हैं क्या, कि जो भी आईडी होगी कॉन्ट्रैक्ट की और साथ साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट का नेम होगा, तो ये R4 से आ रहे हैं हमारे पास। तो आई थिंक आप सब लोगों ने कर लिया होगा, जिसने कर लिया हमें बता दे कि कौन कौन यहाँ तक पहुंच चुका है हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ी और डिटेल में चले जाएंगे और एक बार फिर अगर हम दोबारा से समझा देंगे। जी जी, जिसके क्वेश्चन है अपने अनम्यूट करके कर सकता है। अली हमजा आपका था, प्लीज पहले। अच्छा, बेसिकली फहद, आई थिंक मैं स्टॉप कर रहा हूँ और आई हैव टू गो समवेयर। ओके So I ओके think ओके ओके, थैंक यू अजी, कोई मसला नहीं। थैंक यू गाइस। और तो- ये बाकी सबने कर लिया होगा, तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। हाफिज हाफिज। तो आज का सेशन जो था हमारा, हमने हेलो वर्ल्ड डिप्लॉय करना था, ठीक है। हमारा मेन मोटिव था हेलो वर्ल्ड को डिप्लॉय करना है यहाँ पर ऑन चेन, हमने लोकल नोड पे। लेकिन हाँ, अब फिलहाल हम लोकल नोड्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं। आने जब हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपने बेसिक कंप्लीट कर लेंगे, हम थोड़ा बहुत सीख जाएंगे, उसके बाद हम मेन नेट की तरफ भी बढ़ेंगे। मेन नेट की डिप्लॉयमेंट में थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन होती सेम ही है इसी तरीके से, ठीक है। उसके अलावा जिन जिन के आज मसले थे, जिन जिन के सेटअप से इशूज़ हैं, अगर अजवेरिया में आपको बता देंगे कोई सेशन अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, अगर वीडियोस देखने के बाद भी आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो हमें बताइएगा, हम एक सेशन रख देंगे इसी वीक सैटरडे संडेज को, ताकि जो जब सब अवेलेबल हों तो आप लोग को वहाँ पर खुद से सेटअप की चीज़ करवा दी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा थैंक यू सो मच जो बना रहा, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं कहूँगा कि यार प्लीज़ थोड़ी सी स्टडी करें, अपने एंड पे चीज़ों को समझें, थोड़ी वीडियोस देख लें, थोड़े डॉक्यूमेंटेशन जो हमने प्रोवाइड की हुई है लिंक्स, उनमें जो है थोड़ी सा गो थ्रू करें, पढ़ लें, ताकि आप लोग समझ आ जाए। जितना जितना ज़्यादा कम्युनिटी में इन होंगे, जितना ज़्यादा चीज़ें पढ़ेंगे, जितना न्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि मैं भी इस तरीके से आया था ब्लॉकचेन में, मुझे भी नहीं पता था स्टार्टिंग में डे 1 में, लेकिन
मैंने वो था कि रात 4-4 5 बजे तक बैठ के सिर्फ पढ़ता रहता था। मैं सर जिया के साथ हम लोग पढ़ते थे उस वक्त। सर जिया में 3-3 बजे तक टीचर थे, हमें चीज़ें बेचते थे और हम पढ़ते थे। और अब हमें पता था वो अगले दिन हमसे पूछेंगे, तो हम उसकी तैयारी करते थे रात भर बैठ के, और अगले दिन रेडी होते थे क्योंकि हमारी बेइज्जती होती थी। तो इस तरीके से थोड़ा सा कोशिश करें ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंड करें, ज़्यादा चीज़ें आएँ और आप कुछ इनोवेट कर सकें इन दी एंड गोल जो हमारा है। तो थैंक यू सो मच जो आज आया, और इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। कुछ भी सवाल है मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। Thank you so much, guys. असाइनमेंट्स आप लोग को बिल्कुल प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। असाइनमेंट बिल्कुल हमने बनाए हुए हैं, वो रेपोस वगैरह रेडी कर रहे हैं, तो आप लोग को ग्रुप में दे दिया जाएगा। ठीक है अली हमजा? And just to add on to Fahad, what Fahad said, I think हमारा दिल ये भी है कि हम आपको थोड़ा सा पहले बेसिक्स एक दफा समझा दें, and उसके बाद हम थोड़ा assignments की साइड पे जाएं, and then we'll be having weekly check-ins for those assignments and everything as well. Hopefully that makes sense, Ali. And thank you so much, guys. You guys are free to leave until unless you guys have any questions. तो आप unmute होके बोल लें, आप chat में पूछ लें. We're here to answer those. यस बकर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अभी मैं ना यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। थोड़ा तो मुझे दोबारा ब्लॉकचेन रिपीट पे करेंगे अपना, थोड़ा सा आवाज़ आपका समझ नहीं आ रही। मैंने अभी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहा था एंट्री टेस्ट के लिए। हम्म। तो मुझे हमारे पाकिस्तान के कराची में यहाँ पे कुछ फील्ड नहीं है ब्लॉकचेन से रिलेटेड। अगर कोई आप गाइड कर दें। आपको जॉब्स के लिए अभी अब यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, लेकिन आपको जॉब करनी है, ये कहना चाह रहे हैं? जॉब जॉब नहीं, डिग्री मतलब स्टडी करने के लिए कोई अच्छा, कौन सी फील्ड फील्ड में आप नहीं है। जाएंगे ये पूछना चाह रहे हो? जी जी जी। यार अगर आप जैसे यूनिवर्सिटी में हैं वहाँ पर ब्लॉकचेन का ऑफर हो रहा है ना, जहाँ अप्लाई कर रहे हो, या जैसे यूनिवर्सिटी में भी ब्लॉकचेन ऑफर हो रही है, तो वहाँ उस फील्ड को देखो। उसके अलावा नॉर्मल CS में जाओ बेटर है, लेकिन देख लो। या तो अगर मुझे इस हवाले से ना पर्सनल मैसेज करना है, मैं उसमें आपको ज़्यादा बेटर गाइड कर सकता हूँ। ठीक है? जी जी जी। श्योर। थैंक यू। ओके। एनीवन एल्स? और अपनी प्रोग्रेस शेयर किया करें ग्रुप के अंदर, ताकि हमें पता लगता रहे कि आप लोग क्या काम कर रहे हैं। Ali, you want to ask Web 5? Are you there? अच्छा। अच्छा अली, आपके वेब, अच्छा वेब 5, यार वेब 5 का ना अभी मैं अभी पढ़ रहा था उसके बारे में। उसको अब एक तरीके से मिक्स ऑफ एवरीथिंग, ठीक है, वो काफ़ी फेमस हुआ है। अगर आपने किसी ने सिलिकॉन वैली देखी होगी, डिसेंट्रलाइज इंटरनेट, न्यू इंटरनेट के बारे में 2013 में बात की गई थी उस मूवी के अंदर, तो उस सीरीज़ के अंदर काफ़ी अच्छी है, वो देखें आप लोग। तो बेसिकली यही है कि वो एक कंप्लीट एक नया इंटरनेट होगा, अल्ट्रा डिसेंट्रलाइज को कहते हैं। ठीक है? हमारे जो जैक डॉर्सी साहब हैं, जिन्होंने अभी वो कंप्लीट एक एप्लीकेशन निकाली थी ब्लूटूथ वाली, जो ब्लूटूथ के थ्रू, जिसमें आपको सिम की ज़रूरत नहीं है, किसी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप बात कर सकते हो ब्लूटूथ के ज़रिए। तो बेसिकली या बिल्कुल। सो वेब 5 भी जो है उसी ने एक तरीके का ये जो कॉन्सेप्ट है वो मार्केट में लेके आना चाह रहा है, एक नया इंटरनेट जहाँ पर सारी लाइक Web 2 Web 3 के कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे, और वो कंप्लीट इवन के विदाउट इंटरनेट वो सारा सीन चलेगा। इंटरनेट लाइक जो हमारे पास अभी मूवी नेम है सिलिकॉन वैली, काफ़ी अच्छी है, सीरीज है ये। अच्छा, तो बेसिकली ये होगा कि हर चीज़ वहाँ पर ना डिसेंट्रलाइज आइडेंटिफायर्स यूज़ किए जाएंगे, जैसे DID सिस्टम फॉर एवरीथिंग, वेरीफाइबल क्रेडेंशियल्स होंगे हमारे पास सारे, जितने भी हमें इवन के वेबसाइट्स के जो नोड्स होते हैं ना, हमारे सर्वर्स हो गए, वो भी सारे डिसेंट्रलाइज होंगे। तो वहाँ पर जो भी है डेटा है वो सारा आपका अपना होगा, डेटा स्टोरेज भी सारी डिसेंट्रलाइज होंगी। अगर समझो जो आज Web 3 का जितना भी है वो सब मिक्स कर लो, और Web 2 के जितने कॉन्सेप्ट है उसको Web 3 पे ले जाओ, एंड देन उसके बाद एक नया इंटरनेट को नाम दे दो Web 5। ठीक है? तो सिंपल ये है। न्यू अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल Web 3 के लिए है।
वेब 5 का कॉन्सेप्ट अगर देखें, वेब 3 के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप जैसे जैसे अपना करियर बूस्ट करेंगे, जितना ज़्यादा वेब 3 के अंदर आएंगे, चीज़ें बिल्ड करेंगे, हर चीज़ को अगर जब इस लेवल पे पहुंच जाओ कि हर चीज़ को आप वेब 3 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो जब समझना कि आप हाँ वेब 5 के लिए रेडी हो गए हो। लेकिन हाँ, वेब 3 में अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो वेब 5 में आपकी कॉन्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ये ज़रा ध्यान में रखना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सवाल किया करें, बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। बाकी और किसी का अगर कोई सवाल नहीं है तो आ, फिर हम यहाँ पर एंड करते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। I think let's end it over here. Thank you so much, guys, for joining. Recording